اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ چرند ہو یا پرند ہو، جنات ہو، انسان ہو، حیوان ہو، جس چیز میں جان ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو دنیا سے جانے کی تیاری کرنا چاہیے۔ ہم خوب جوشیلی اور لچھے دار تقریر کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ابھی خوب شاندار بیان حضرت میرے بڑے بھائی قاری محمد احمد صاحب کی آپ سماعت کریں گے۔ بس عوام کا کچھ درد ہمارے سینے کے اندر ہے، وہ آپ کے درمیان میں بیان کر کے چلا جاؤں گا۔ ہمیں اور آپ کو کہاں جانا ہے؟ قبرستان جانا ہے۔ تو قبرستان کی حفاظت کرنا چاہیے، قبرستان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ آج میں کسی کا نام تو نہیں لے سکتا، لیکن اکثر و بیشتر مسلمانوں کے قبرستان کے حالات یہ ہیں کہ بہت زیادہ بے حرمتی ہوتی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے ہمیں زمین دیا، ہمیں دفن ہونے کے لیے زمین کہیں سے بھی کسی بھی طریقے سے انہوں نے انتظام و اہتمام کیا کہ نہیں کیا۔ اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی حفاظت کرنا چاہیے، جسے ہم اپنے گھر کے چاروں طرف دیوار اٹھا کر کے اپنے گھر میں پردے کا انتظام و اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ہم کو اپنے قبرستان کی بھی حفاظت کرنا چاہیے کہ تاکہ لوگ قبرستان میں ہمارے پیشاب نہ کریں، شراب نہ پئیں اور زنا خوری نہ کریں۔ تمام بہت گناہوں کے اڈے بن چکے ہمارے یہاں قبرستانوں کے، اور پوری دنیا میں جا کر کے میں ذکر کروں گا جہاں جہاں کا قبرستان ہوگا اور اس طرح بے حرمتیاں کی جائیں گی۔ بتائیے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جب قبرستان سے گزرا کرو تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ جب ہم قبرستان جائیں گے وہاں لوگ ہمیں پیشاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے، شراب پیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور بھینس اور ہمارے بکریوں کے پاخانہ وہاں پڑے رہیں گے، تو ہمیں اسے سلام کرنے کا دل کرے گا؟ یہی کہے سلام تو آدمی بعد میں کرے گا، کہے گا اتنے گرے مسلمان ہیں کہ اپنے باپ دادا کی قبر کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں۔ ہماری ماں اسی قبرستان میں دفن ہے جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ نبی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور جس جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے سمیٹ کر رکھ دیا، اس ماں کی قبر کی ہم بے حرمتی اس طرح کریں کہ لوگ آ کر کے ہمیں دعا نہ دے، بد دعا دے، ہمیں بد دعا دے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، قبر کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہمارے باپ داداؤں نے قبرستان بنا دیا ہے، اب اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان سسرال جاتا ہے، مہینے میں بہت ایسے ہیں کہ ہفتہ بھر کے بعد ان کا دوسرا ہفتہ سسرال میں گزرتا ہے، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، مہینے میں وہ سسرال ضرور جاتے ہیں۔ اور اگر یہ پوچھو کہ ماں باپ کی قبر پر کتنی بار حضرت حاضری دیا ہے آپ نے؟ سال بھر ہو گئے ہیں، 2 سال ہو گئے، ماں کے قبرستان پر آپ حاضری دیے ہیں؟ تو کہیں گے نہیں۔ کیوں نہیں دیا؟ میرے پیارے بھائیوں، ایک حدیث مبارکہ میں آپ لوگوں کے درمیان سنا کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، قبر ہفتے میں ایک دن قبرستان جایا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر ہم ہفتے میں نہ جا سکیں تو کہا 15 دن میں جایا کرو۔ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام 15 دن میں نہ جا سکوں تو میں کیا کروں؟ کہا مہینے میں جایا کرو۔ یا رسول اللہ مہینے میں نہ جا سکوں تو جو مولا نبی فرماتے ہیں 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4-5 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال بھر میں، لیکن ایک بار قبرستان جایا کرو، ایک بار قبرستان جایا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، یا حبیب اللہ علیہ السلام، قبرستان جا کر کے ہم لوگ کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر کے قبر والوں کے نام اصال ثواب کر دیا کرو، قبرستان والوں کے نام اصال ثواب کر دیا کرو۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ہمارا اور قبر والوں کا
का क्या बेनिफिट होगा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जितने भी मुर्दे कब्र में मदफून हैं, दफन हैं, क़यामत तक के आपस में सवाब बांटते रहेंगे, लेकिन कुल हु अल्लाह की बरकत का सवाब जो है क़यामत तक के ख़त्म नहीं होगा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, फ़िदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप का आपके कदमों पर कुर्बान हो जाएं, आखिर उसमें कब्र वालों का फ़ायदा है, मेरा क्या फ़ायदा होगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, कब्रिस्तान में जितने मुर्दे दफन हैं, जितना सबको मिलेगा उतना पढ़ने वाले को अकेल मिलेगा। जब कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ने की ये बरकत है तो कुरान पाक की मुक़द्दस आयतों की बरकत का आलम क्या होगा। शायर कहता है, जब उनकी गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। बताइए, कब्रिस्तान में जब से हमारे जो है हमारा ख़ानदान, हमारी नस्ल आबाद हुई, कितने मुर्दे दफन होंगे, कौन सी इबादत पे हमको इतना सवाब मिलेगा। लेकिन 11 मरतबा अगर हम कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ करके जो है इसाले सवाब कर देंगे तो कब्र वालों को भी सवाब मिलेगा और हम लोगों को भी सवाब मिलेगा। बताइए, कब्र से कितना बड़ा सवाब है। आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज आपकी कबूल होती है या नहीं ये अल्लाह जानता है। रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है या नहीं, लेकिन वो सवाब हक़ है, वो उस सवाब को कोई नहीं रोक सकता। आपका दिल साफ़ हो, आपका दिल ना साफ़ हो, फिर भी आपको अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। तो जिस तरह आप जो है आपके बाप दादाओं ने कब्रिस्तान और 10वां 20वां 40वां ये सब राइज किया है, तो हम और आप भी एक काम ये राइज करें कि हफ्ते में एक दिन 1 घंटा आधा घंटे का वक्त निकाल करके अपने घर के मरहूमीन के कब्रों पर जा करके इसाले सवाब दे। वरना जानते हो, न आप अपने बाप दादा की कब्रिस्तान पर ज़िंदगी में न हाजिर हो सके तो आप ही के ज़िंदगी से आपकी औलादें सबक लेंगी, कभी आपके कब्र पर नहीं जाएंगी। और अगर आप जाएंगे अपने बाप दादा के कब्र पर तो आपका बच्चा सोचेगा, मेरा बाप हफ्ते में एक दिन कब्रिस्तान जाया करता था, अपने बाप दादाओं के नाम इसाले सवाब किया करता था। वो कभी न कभी ज़रूर सोचेगा, नहीं जवानी में सोचेगा तो बुढ़ापे में सोचेगा, नहीं बचपने में सोचेगा तो जवानी में सोचेगा। और तुम्हारी कब्र पर अगर हाथ फैला करके दुआ कर देगा, मौला ताला हो सकता है उसकी दुआ को कबूल कर ले और तुम्हारी बख्शिश फरमा दे। वरना इसी औलाद से क्या फ़ायदा जिससे बाप के रूह को खुशी न मिल सके। बताइए, ऐसी औलाद से क्या फ़ायदा जो न दुनिया में मुझे खुश रख सका। शादी हुई, मियाँ बीवी अलग, माँ बाप चाहे मरते रहें, खाना बनाकर बहुरिया नहीं देगी तो नहीं देगी, यही होता है। बताइए, उसी घर में वो बाप अपने बेटे को इस तरह पाला है, बीमार हो गया तो दूसरों की ठोकरें खाती फिर रही है, परेशान हो गया अगर रो रहा है तो 2 बजे रात के मस्जिद के दरवाजे पर माँ बेटे को लेकर के खड़ी है। आज भी मामूली है, 2-2 बजे रात तक लोग मस्जिद के दरवाजे पर खड़े रहते, किस लिए कि उनका बच्चा रो रहा है। और जब उनका बच्चा बड़ा होता है तो कसम खुदा की वो बच्चा बेशादी हो गई और माँ बाप की तरफ एक नज़र उठा करके देखना गवारा नहीं कर रहा है। वो माँ बाप जिन्हें जो बच्चे को दर बदर लेकर के भटकते रहे, आज वो माँ बाप को एक नज़र देखना पसंद नहीं करता है। क्यों? माँ बाप उसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। माँ मेरी बात नहीं मानती है, बाप मेरा बात नहीं मानता, ये हवाले मिलते हैं। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, माँ बाप कुछ भी हो, लाख गलत हो, लेकिन बेटे का फ़र्ज़ है माँ बाप की जो है इताअत करना, माँ बाप की फर्मा बरदारी करना। दुनिया की तमाम इबादतें एक तरफ रख दिया जाए और माँ की मोहब्बत को एक तरफ रख दिया जाए तो आपकी तमाम सारी इबादतें रखी रह जाएंगी। अगर माँ बाप तुमसे खुश हैं तो तुम्हारी जो है समझ लीजिए बख्शिश का परवाना है। इस करने के माँ किससे सबक लीजिए। इतनी जो है इतना उन्होंने खिदमत किया कि अल्लाह भी खुश हो गया, नबी भी खुश हो गए और जो है अपने उम्मत के लिए दुआ करने के लिए नबी ने कह दिया कि वैस करने से कह देना, वैस से कह देना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। तो सिर्फ माँ बाप की खिदमत से मेरे प्यारे भाई उन माँ बाप की कब्रों की हिफाजत करो। सिर्फ 40वां और 20वां तीजा करने से उनके रूह को यह समझिए कि खुशी मिल रही है, कुछ नहीं है। जो है बड़ी बड़ी पार्टियाँ और लंगर खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनके नाम जितना कुरान पाक पढ़ कर के इसाले सवाब करो
करोगे ये सवाब है, ये मदरसे के बच्चे खाएंगे ये सवाब है। ये मदरसे के बच्चे हैं, इनके ताल्लुक़ से हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मेरा इंतकाल हो जाए हज़रत, तो मेरे कफन को मदरसे के गेट पे बिछा देना। चाहने वालों ने कहा कि हुजूर क्यों? कहा कि मेरे इबादत, मेरी नमाज, मेरे रोज़े न जाने खुदा की बारगाह में कबूल हो या ना हो, लेकिन ये मदरसे के बच्चे जब चलते हैं तो जिब्राईल अमी अपना पर बिछाते हैं, जिब्राईल अमी अपना पर बिछाते हैं, और मेरा कफन मदरसे के दरवाज़े पर रख देना, और पूरा दिन पड़ा रहे और बच्चे उस पर आते जाते रहें, और उसे धुलना नहीं, उसी कफन में मुझे लपेट करके दफना देना। मैदान महशर में जब परवरदिगार आलम पूछेगा तो मैं कहूँगा मौला मेरे पास कोई दौलत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाया हूँ तो मेहमान रसूल के कदमों से धूल आलूदा अपना कफन लाया हूँ। मौला यही मेरी बख्शिश का जरिया है। मौला अगर तेरे महबूब के जो है मेहमानों की कदमों की बरकत है, अगर जिब्राईल अमी का कदम मुबारक इस कफन पर पड़ गया है तो मेरी बख्शिश का परवाना अता फरमा दे। इन मदरसे के बच्चों को खिलाना चाहिए, क्योंकि आज जिब्राईल अमी हमारे दरवाजे पर न जाने आते हैं कि नहीं आते हैं, किसी को खबर है नहीं है, न जाने कभी आए या ना आए, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब एक मेहमान रसूल, एक जो है मदरसे का तलबा आपके दरवाजे पर कदम रखता है तो ये समझ लीजिए जिब्राईल अमी का पर तुम्हारे घर के दरवाजे पर आ गया। और जिसके दरवाजे पर जिब्राईल अमी का पर आ जाए उसके घर के बरकत ना पूछो, कसम खुदा की बेपनाह बरकतें अल्लाह ताला देता है। ये वो इन मदरसे के बच्चों को खिलाने में फ़ायदा है। और आज तो जो है कुरान खाने में ऐसे ऐसे लोगों को पूछते हैं, नशेबाजों को, 80% लोग नशेबाज हैं। और सबसे बड़ी हिदायत, मैं हर कहीं ये बात बोलता हूँ कि अगर आप अपने 40वां 10वां 20वां जुमेरात का खाना ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो लोग शराब पी रहे हैं तो आप सख्त गुनहगार होते हैं, सख्त गुनहगार होते हैं, क्योंकि गोया आप उन्हें शराब पीने में मदद कर रहे हैं। उनको शाम को खाना मिल जाता है, दिन भर का खाना मिला, शाम को मिला, और जो 150 कमाया वो नशेबाजी में उड़ा रहे हैं। उनको खाना तो मिल ही रहा है, नशा करने की ज़रूरत है तो उन्हें कतई खाना ना दीजिए, भले उस खाने को आप अपने घर में खा लीजिए, आप खा सकते हैं। सिर्फ सैयद और आले रसूल नहीं खा सकता है, बल्कि जो है जुमेरात का खाना है, 10वां 20वां का खाना घर वाले भी खा सकते हैं, और 70 बीमारियों की शिफा है फातिहा के खाने में। आप ये ना सोचें कि हम लोग नहीं खा सकते हैं, खा सकते हैं। अगर गरीबों को खिलाओगे तो सवाब है, लेकिन ऐसे गरीब को क्या फ़ायदा खिलाए जो दिन भर नशे में डूबा रहता है। उसका आप सोच रहे हैं कि उसकी बीवी खाएगी, उसका अपने बीवी को भी मारता है, बच्चों को भी मारता है, खुद छीन करके खा लेता है। जो 150 रुपया दे तो वो भी छीन करके शराब पी लेता है। तो भले आप इन मदरसे के बच्चों को खिला दीजिए, कपड़ा, सदका, ज़कात, खैरात हरगिज़ ना दीजिए। खुद परेशान हो जाएंगे तो एक दिन न एक दिन सोचेंगे अब मदद नहीं मिल रही, हो सकता है आपके इस जो है खुश अखलाक़ी से कोई सुधर जाए। मेरे प्यारे भाइयों, तो अपना जो है खाना पीना शराबियों को यहाँ मत भिजवाइए। भले आप खाना के जगह उस खाने की जो है मिक़दार का पैसा किसी मस्जिद या मदरसे में लगा दीजिए, ये बेहतर है, लेकिन शराबी को हरगिज़ ना खिलाइए, बेहतर है। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि इन चंद जुमले अपनी बारगाह में मौला ताला कबूल फरमाए और इस पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।